एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूलत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर पाओ डूबदे पत्थर तारे ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाओ बिघन नदी जाए तरनी साध संगत का अंचल लाओ बिघन नदी जाए तरनी। परम सन्मानियो जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालिक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों विच धन धन गुरु रामदास महाराज जी के पावन पुरब नूं समर्पित होके इन्हां समागमां दे विच हाज़रियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठ अमृतमयी बाणी का गुरमत विचारां का लाहा प्राप्त कर रहे सी। अगलेरा समा जो गुरमत विचारां का है, जितने भी आप समर्थ सतगुरु जी के पावन चरणों विच जुड़ बैठे हो, मन की एकाग्रता वास्ते गुर फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परमेश्वर ने ये मनुखा जन्म सानू बख्शिया है। मनुख का मतलब जो मन के तल ते जीवन वाला है। असी जिस मकसद वास्ते इस जन्म दे विच आए, मन भुलाहे पै गया, मन भुल गया, भटक गया, जिस करके ये मकसद भी भुल गया कि मैं क्यों आया सी और मैं इस जन्म दे विच कर की रहा, मैनू करना की चाहिए। हुण भुले हुए मन नूं समझाउण वास्ते, मन भुलिया क्यों, भुलाया किवें है? साडा जीवन मन ते डिपेंड करता है। असीं मन दे तल ते जीवन वाले हां। पशु बिरती है, जानवर बिरती है, पंछी की बिरती है, पर साडी जिहड़ी बिरती है वो मनुख दी है। और लगभग तकरीबन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच भावें वो भगत साहबान की बाणी है, भावें गुरु साहबान की बाणी है, होका मन नूं ही दिता गया है, आवाज मन नूं ही दिती गई है, समझाया मन नूं ही गया है। क्योंकि उन्होंने समझाया जाता है जिहड़ा भुलिया।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ, ਚੰਦ ਨੋਟਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ? ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ। ਜਦ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਨ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਲਝਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਚੰਚਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤਰ ਹੋ ਜਾ, ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ।
ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, तेरे नाले साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीजै जित अंत पछुताइए। गुरु साहब जी नहीं भगत साहबान जी कहते हैं राम सिमर पछुताएगा मन। ये मन जे तू परमेश्वर के नाम की बंदगी ना की फिर तेनों अखीर पछताना पड़ेगा। हुण जो मन ना समझे, मन ढीठ है, मन समझता नहीं छेती किते, फिर जो ये मन जे ना समझे फिर इनू प्यार नाल समझाओ। कई बार ना घर च बजुर्ग कहते हैं कि बच्चे नू मार नाल समझाइए, नहीं समझता फिर उन्होंने प्यार नाल समझाना पैंदा है। हुण मन नू प्यार नाल समझाओ। मन नू प्यार नाल किवें समझाउणा है? सुन मन मित्र प्यारिया। हुण इहनूं मित्र कहना, प्यारा कहना कि मन तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरी एक गल ध्यान लाके सुन। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ये, जब लग जोबन सास है, तब लग एह तन दे। मेरे प्यारे मन जिन्ना चिर साह चलता है उन्ना चिर ही दे है। ये शरीर ये बॉडी उन्ना चिर ही है, जदों साह रुक गया तो इस शरीर ने काम नहीं करना, इन्हें हरकत नहीं करनी। इसलिए तेरे को हजे मौका है, साह चलता है तो साह कदों तक चलना है ये तो किसी को भी नहीं पता। ये मत के जाते साह आवे कि ना आवे, पता नहीं अगला साह आना भी कि नहीं आना। जे समझ आ गई सानू अज ही गुरु वाले बनांगे। जे समझ आ गई ना भी पता नहीं कल का दिन चढ़ना कि नहीं चढ़ना, अगला साह मिलना कि नहीं मिलना, अज ही मन कहेगा भी तू गुरु वाला बन। दास ने एक घटना बड़ी थावां ते सांझी कीती है, गोहनवारन साहब तो भी सांझी कीती, जिहड़ियां संगतां लाइव सुणदियां होणगीआं, शायद तुहाडे जो किसी ने सुनिया होवे, क्योंकि इस स्थान पे अमृत संचार भी होना है। अमृत अबलाखियां ने अमृत की दात भी लैनी है। तो ध्यान रखियो, अमृत विच अमृत शक्ति है, अमृत एक पावर है, पर जे किते साडा मन समझ जाएगा। एक घटना दास ने अक्सर कई थावां ते जिक्र किया होगा कि लुधियाने दे विच ही एक गुरु घर के अंदर अमृत संचार सी। पंज प्यारे जिहड़े आए दरबार हाल दे विच बैठे, उन्हां नाल विचारां दी सांझ पई ते पुछया कि तुसीं कोई अपने जीवन दा कोई तजर्बा, कोई घटना वापरी होवे ते सानू सुणाओ। पहले तो वो कहते नहीं, इस तरह दसिया नहीं जाता, इस तरह खुलासा किया नहीं जाता, और आख्या कि कोई नहीं, आप सारे गुरु भाई हाँ, सानू भी पता होवे कि जिहड़ा अमृत का बाटा तैयार होंदा है उस अमृत विच की है। मारे कहते अमृत पीवो सदा चिर पीवो। सब कहते जिहड़ा अमृत सानू मनुख नूं मिल रहा, उस अमृत नूं तां सुर नर मुन जन अमृत खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। हुण पंज प्यारियां दे विचों दी फिर एक गुरु के प्यारे ने गल साझी कीती। कहते कि हुण तक गुरु कलगीधर पातशाह ने, क्योंकि ध्यान रखियो पंजां विच परमेश्वर भी है और पंजां विच आप दशमेश पिता जी वरतते हैं। पंजां विच गुरु कलगीधर पातशाह जी वरतते हैं। उन्हां विचों कहण लगे भी एक दिन सानू फोन आया भी अमृत अबलाखी ने अमृत की दात लैनी है, पर उन्होंने घर विच ही अमृत दात देनी पएगी, वो चल के नहीं आ सकता। उन्हें आखिया जी एक दे लई असीं
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ में 5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਲਾਖੀ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਾਹ ਦੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, 2-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਿਗੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਗਲਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ? ਨਾਲ ਕਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਬਲਾਖੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ
ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਮਾਸ ਇਹਦਾ ਹੱਡ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੜਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਾਤਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਨ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਦ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਆ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸਵਾਸ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਹਜੇ ਬੜੇਪਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਬੜੇਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇਪਾ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਪ ਸਕੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਪਏ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। कहते हुण गल मूँह विचों गल चों साफ बोल भी नहीं निकलते। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, हुण कंठ चों आवाज भी नहीं निकलती। केस दुधवानी, ये दुध वांगू केस चुटे भाव बड़े पासे करते आ गया। हुण अखां विचों पानी अपने आप वहिंदा रहता है। अब क्या करे परानी, हुण दस की करेगा तू। इसलिए आख्या सी जब लग जोबन सास है। जदों तक ये जोबन ते सवास है तू बंदगी कर, तू गुरु वाला बन। अज भी दास नूं एक घटनावां बहुत ने, गल समझण दी है। फगवाड़े दे विच समागम सी ते छोटी छोटी बच्चियां जड़ियां ने ना, उन्होंने ढाडी वारां करियां। कदे सुनिया सी कि मापे बच्चियां नूं समझाउंदे आ, पर कई थावां ते देखीदा बच्चे मापियां नूं समझाउंदे आ। जिवें तुसीं बैठे हो ना, इदां ही पहली पंक्ति जिहड़ी लाइन दे विच पंगत विच सारे बजुर्ग बैठे सी। दास तो पहला उन्होंने बच्चियां ने, कोई 10 साल की सी, कोई 15 की, कोई 12 साल की, उन्होंने ढाडी वार की समाप्ति जदों की ना, क्योंकि बाद में कथा का समा सी, ते उन्होंने बच्चियां ने इको गल कही, कहन लगे जिन्ने बजुर्ग तुसी मेरे अगे बैठे हो, बच्चियां ने कहा कि जिन्ने बजुर्ग तुसी साडे अगे बैठे हो, तुसी साडे दादे दे उम्र दे बैठे हो। असी तुहानू इको ही बेनती करते हैं, गुरु वाले बन गुरु वाले बन जाओ। कहते ने तुसी जिहड़ा वो हाँ करो भी तुसी गुरु वाले बनोगे और सच जानना। पहली लाइन में जिहड़े बजुर्ग बैठे सी, किसी ने सिर ऊंचा ही नहीं किया, नीवियां भालियां। वो बच्चियां ने फिर आख्या भी बजुर्गो उम्र लग गई तुहाडी, असीं तुहाडी पोतियां दी उम्र दे आ, तुहाडे पोतियां दे वर्गे आ असीं। अज पोती दादे नूं कह रही है कि दादा जी गुरु वाले बन जाओ। फिर उस तो बाद जदों दास दा समा आया ते आरंभ विच ही ये गल आखी सी कि कैसा जमाना आ गया, नानक दुनिया कैसी हुई कि बजुर्ग मापे जिहड़े आ वो बच्चियां नूं समझाउंदे हुंदे सी, पर अज बच्चे मापियां नूं समझाउंदे आ। गुरु साहब किरपा करन, असीं आप भी जुड़ना है ते होरां नूं भी जुड़ना है। ये कोई साडे अमृत दी दात सानूं कोई दुख नहीं देगी, ये सानूं सुख देण वास्ते है। और इहदी मर्यादा गुरु नानक साहब तो ही शुरू होंदी है। जिहड़ी ढोलकी बाणी अमृत रस नाल भरपूर है, ये कित्थों आउंदी है? ये उस मालिक दे घर चों लियाउंदा कौन है? गुरु नानक साहब। जैसी में आवे खसम की बाणी फैसला करी ज्ञान वेला लो। हुण वो बाणी का खजाना गुरु अंगद साहब कोल आउंदा है। गुरु अंगद साहब कोले अमृत गुरु अमरदास जी कोल आउंदा है। गुरु अमरदास जी को ये अमृत जिहड़ा है गुरु रामदास जी कोल आउंदा है। पर जदों गुरु रामदास जी कोल आउंदा है, उदों गुरु अमरदास जी ने कह दिता कि किते ध्यान रखियो, अमृत की जगह ते शरबत ही ना पीते रहो, शरबत का स्वाद ही ना किते लैंदे रहो, नहीं तो शरबत ने कई रोग ला देने आ। जे अमृत पीओगे तो कई रोग कटे जाने। हुण किवें महाराज ने आख्या, अरे तेरे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी का कच्ची सतगुरु बाटों होर कच्ची बाणी। वो कच्ची बाणी की है, शरबत ही है, मिठी लगती है।
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੈਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੰਗਤੀ ਉਚਾਰੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਓ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ। ਨਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੱਤ ਨੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮੱਤ ਦੇਂਦੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
इसलिए सतगुरु महाराज कहते तेरी मत विच शुभ गुणा के खजाने प्रगट होणगे जे तू एक भी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ध्यान ला के सुन लवे। हुण ध्यान ला के सुनना ही तो औखा है, सुनाना सौखा है। दूजियां नूं सुनाना बड़ा सौखा है पर आप सुनना बड़ा औखा है। जिस दिन ध्यान ला के सुन लांगे उस दिन की होएगा, सुनिया दुख पाप का नास। तुसी जपजी साहब का पाठ करने वालियां संगतां हो, नाणे नूं सिहारी लगी है, ऐड़े नूं दुलावा सुने है। ध्यान ला के सुनन नाल जे आपां उहनूं बिहारी दी आवाज़ देंगे सुनी है, फिर उहदा मतलब किसी नूं आवाज़ मार के कहने भी मेरी गल सुन, अर्थ बदल जाता है। जे एक जपजी साहब की बाणी में आपां 38 पौड़ियां टेक के ध्यान ला के सुन लीए या पढ़ लीए तो अंदर ही साडे सचखंड बन जाना, अंदर ही बन जाना। सचखंड वसै निरंकार, वो कितने है? हिरदे विच ही है। इसलिए असी बाहर दीआं भेटावां बहुत चढ़ाइयां भी दास ने कई बारी लाइव दे विच कथा करदे आख्या आ बाहर दीआं भेटावां जड़ियां ने बहुत असी मालिक ने चलो दित्तियां ने ते अगे रख दित्तियां, पर साहब कहते जड़ियां भेटावां ने इत्थे वरत जाणियां, इत्थे खर्च जाणियां। जे कोई खाण वाला समान लिया वो संगत विच वरत जाएगा, जे तुसी माया भेट कीती वो इत्थे वरत खर्च जाएगा, प्रबंध विच खर्च जाएगा। पर असी सतगुरु नूं की दित्ता? असी सतगुरु नूं जिहड़ी भेटा दित्ती है। पुछया महाराज जी फेर कै अगे रखी है, जित दिसै दरबार, मूहों कै बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। रोज पूछया करो जपजी साहब का पाठ करते हैं, फेर कै अगे रखी है, की रखी है महाराज अगे? ते महाराज कहते तू अमृत वेला अगे रख दे, अमृत पी, उदों असीं फिर पिछे नूं भजदे हां कि महाराज आ नहीं रख होना, बाकी जो मर्जी रखा। तुसीं रोमाला साहब कहो असीं 50,000 का भी लिया के देण नूं तैयार हां, पर अमृत वेला ते अमृत लैण नूं तैयार नहीं। फिर हमारे कहते खुशियां कितों भालदा है? जे तू सुख मंगदा है ते सुख तैनूं किदां मिलेगा? असीं आए सतगुर आयो शरण तुहारी, आवाज़ दित्ती सतगुर आयो शरण तुहारी, मैं तुहाडी शरण विच आया। अगों आवाज़ आई कि क्यों आया, काहदे लई आया, किस वास्ते आया? फिर असीं दसांगे भी काहदे लई आया। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। मैं सुख लैण आया, मेरी चिंता दूर कर दिओ। ते मारे कहते रख अमृत वेला के, अमृत लै तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। फिर असीं किन्ने भी पासे दे होके लंघ जाइए, ये काम नहीं होना। फिर सुख कितना मिलेगा सब? जे असीं गुरु साहब दे दसे हुए मार्ग ते नहीं तुरांगे फिर सुख कितना मिलेगा? ये तुसीं दसो किवें मिलेगा? सुख तां गुरु दे हुक्म दे विच तुर के मिलना है, गुरु की सेवा विच जुड़ के मिलना। जो गुरु साहब कहते आ उहदे ते अमल करके सुख मिलना है। ते असीं पुछया महाराज फेर कै अगे रखीए, की रखा मैं तुहाडे अगे? साहब कहते अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेले अमृत का रस वरतदा है। फिर महाराज जी मूहों कै बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। मूहों की बोलना? साहब जी कहते सच नाओ वडियाई विचार, सच्चे नाम की वडियाई अपने मूहों करया कर। सच्चे नाम की वडियाई अपने मूहों कर। हुण आपां हैगे मतलबी, असीं कहने मिलेगा की इहदे बदले? चलो अमृत वेले उठ भी जाते हैं, 4 दिन अमृत लै भी लेने, की मिलेगा इहदे बट्टे सानूं? असीं सौदा भी नाल नाल ही करते हैं ना, भी एक हत्थ लै ते एक हत्थ दे। इधरों तुसीं अमृत वेला लो पर दिओगे की सानूं? महाराज कहते तैनूं फिर पता की मिलेगा? करनी आवे कपड़ा, करनी बख्शिश।
इत्थे कर्म नहीं है, इत्थे करनी का अर्थ बख्शिश है। तैनू उहदे घर चों बख्शिश का कपड़ा तन ढकण लई नहीं, तेरे अंदर दे पर्दे कजण नहीं मिलेगा। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। तेरे पाप दे पर्दे कटे जाणगे जदों ने करनी आवे कपड़ा। नदरी मोख द्वार, मोख मने मुक्ति, जदों दी नदर हुई तैनू सारे पासियों मुक्ति मिल जानी है। तू मन करके भी आजाद, तू तन करके भी आजाद। असी हाथ विच कड़ा नहीं पा सकते पर धागा जरूर बना सकते हैं। ये गुलामी हुई है। गुरु की बख्शिश वाला कड़ा पाना औखा लगता है, पर धागा तुसी कहो वो असी बना लांगे, वो सौखा है। इसका मतलब असी ते गुलाम हैं। सानू गुलामी दे विच ही रखा गया। ये कड़ा आजादी का प्रतीक है। असी वहम भरम दे विच पए हां, ये सानू वहम भरम विचों कटदा है। पंज प्रकारां दी अहमियत है। केसां दी अपनी अहमियत है, कंगे दी अपनी अहमियत है। ये जिहड़ा श्री साहब है, कड़ा है, कशहरा, ये पंजां प्रकारां दी अहमियत है। अज डॉक्टर मंनदे ने, शायद तुहाडे चों कोई होवे ਇਹਦੀ जानकारी रखता होवे, जिहड़ा लक्कड़ का कंगा दिता ना, लक्कड़ का प्लास्टिक के भी बड़े मिलते हैं। कईयां नूं ना अद्धे सिर की प्रॉब्लम है भी अद्धा सिर दुखदा अद्धा नहीं दुखदा। कईयां नूं ये प्रॉब्लम है भी अद्धा सिर दुखदा अद्धा नहीं दुखदा। बड़ियां दवाइयां खा लियां, बड़े चैकअप करा ले, आराम नहीं होता, अद्धा सिर हर वेले दर्द हुंदा है। ते जिहड़े लक्कड़ का कंगा अपने केसां विच 2 टाइम सवेरे शाम फेरदे आ, सच जने उन्हां दी सिर दी दर्द दूर हो जाती। जिहड़ियां दवाइयां खा के नहीं ना हुंदी, वो कंगा लक्कड़ दा। ते गुरु कलगीधर पातशाह तुसीं किन्नी दूर दी सोच रख के सानूं लक्कड़ दा कंगा दित्ता। प्लास्टिक का भी दे सकते सी, किसी होर धात का भी दे सकते सी, पर नहीं। जदों तुहाडे सिर दी चमड़ी नूं लक्कड़ का कंगा छू के चलेगा, करंट पैदा होएगा, तुहाडीआं नाड़ियां ब्लॉक नहीं होणगीआं। सिर विच जिहड़ियां बरीक बरीक नाड़ियां ने वो कदे ब्लॉक नहीं होणगीआं। तुहाडे सिर विच दा अद्धा सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं, महाराज वैद नहीं ने, कल्ला कंगा नहीं दिता, वैद भी है गुरु साहब। ते जिहड़ा वैद गुरु कोल आया सी, महाराज हस पए, कहंदे तू ते चमड़ी दा वैद है, तू अंदर दी रूह दा वैद थोड़ी है। वैद बुलाया वैद की पकड़ टडोले पा, भोला वैद न जाणई कर गरीबी मां। कहंदे तू दा बाहर दी बांह पकड़ के रोग लभदा है, रोग दा अंदर है। जे सानू महाराज ने सर्व लोह दा कड़ा दिता ते एवें नहीं दिता। पर असी किते विआह शादी ते जाना होवे ना, बंदा कहता जी ये ला दिओ ते सोने का पा लिओ, क्योंकि दुनिया नूं दिखाना है, पर गुरु तो तां बेवकूफ हो गए। फिर डर रहता कि कोई ला के ना लै जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए। महाराज जी कहते हैं तेनों इसलिए दिता है तू वहम भरम तो भी बचिया रहे और बाहर दे लुटेरियां तो भी बचिया रहे। ये इसलिए तेनों दिता है। गल जिहड़ी कर रहा सा गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी कहते विच बाणी अमृत सारे, मैनू नामी सिख नहीं चाहिए, मैनू कमाई वाला सिख चाहिए। जे तुसी गुरु का सिख अखाउंदे हो ते फिर गुरु रामदास जी दे इस शब्द ते पहरा दे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जो अपने आप को अखाउंदा भी मैं गुरु का सिख हाँ, सिख का नाम नाल सिख लाना ते औखा हो गया सा। अज ना तुसीं विआह शादियां दे कार्ड आउंदे ना, ते असीं अपने बच्चियां दे नाम नालों कौर ते सिख आपे ही खत्म करी जाने आ। दूजियां नूं असीं की कहांगे? कदे सोचिया तुसीं? ठीक है, पढ़ाई लिखाई हाई सोसाइटी सानूं चाहिदी है, पर इन्ने भी हाई फाई ना होवो कि तुहानूं अपने बच्चियां नाल सिख ते कौर लाउणा भी औखा हो जाए। विआह शादियां दे कार्ड उत्ते कल्ला नाम लिखिया हुंदा बच्चे ते बच्ची का, पिछे सिख ते कौर हुंदा ही नहीं। असीं आप ही सिक्खी अपने घर चों कड्ढण नूं फिरदे हां।
जिन्हां ने सिक्खी कमाउंदियां आख्या सी सिर जाए तन जाए, मेरा सिक्खी सिदक न जाए। असी कहने सिख तुहाडे आ, पर नाम नाल सिख नहीं लाउणा। जे नाम नाल सिख नहीं लाउणा ते फिर असी काहदे कर सिख हां गुरु दे। गुरु सतगुर काजो सिख अखाए, सो भल कह उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावे। आ अमृत सर है, सर मैंने सरोवर, अमृत का सरोवर केड़ा है? ये बाणी अमृत का सरोवर है। तन भी अपना नहावे ते मन करके भी नहावे। हुण असीं तन करके ते नहा लांगे, मन नूं किवें नहाईए? महाराज ने हर सवाल का जवाब बाणी विच दित्ता है। बाणी पढ़न सुनन की लोड़ है, हर सवाल का जवाब तुहानूं बाणी विचों मिलेगा। साहब जी कहते ने कर इशनान। पूछया महाराज जी तन का ते हो गया, मन का किवें करिए? साहब कहते सिमर प्रभु अपना। जदों तू प्रभु नूं सिमरेगा वो तेरे मन का इशनान ही हो रहा होता है। जपजी साहब की बाणी तेरे मन के इशनान लई है, जाप साहब की बाणी तेरे मन के इशनान लई है। सवैये की बाणी, चौपाई साहब, आनंद साहब की बाणी तेरे मन की मल उतारने वास्ते है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भए अरोगा। चलो पंज बाणियां का नाम गुरु साहब ने रसना तो बुलाया। हुण ध्यान रखियो, जिहड़ा रोज उठ के पंजां बाणियां का नित नेम करता है वो रोज आनंदपुर साहब होके आता है। तुसीं भावें इत्थे बैठे हो ना, ते इत्थों तुसीं ला लो आनंदपुर साहब कितनी दूर है। तुसीं इत्थे बैठे आनंदपुर साहब हाज़री लगा सकते। जे कोई अमेरिका कनाडा में बैठा, उत्थे बैठा आनंदपुर साहब हाज़री लगा सकता है, क्योंकि साडा असल घर आनंदपुर साहब है। असीं आनंदपुर दे वासी हां। भावें जिथे मर्जी चले जाइए, कनाडा, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, जिथे मर्जी चले जाइए, पर रहना असीं आनंदपुर दे वासी हैं। वो किस तरह? जपजी साहब का पाठ घरों तुरन लई है। जिवें मनो आपां घर तो तुरे हां, जिहड़ा जपजी साहब का पाठ है ना, ये घर तो दरवाजे तो बाहर कदम रखिया। हुण जदों तुसीं घरों बाहर निकले, तुहानूं रस्ते च कोई पुछेगा भी कित्थे जा रहे हो, तुहानूं मंजिल ते पता होवे ना भी मैं फलानी थां जा रहा। जाप साहब की बाणी तुहानूं मंजिल वल ले जाण वास्ते है। निरोल अकाल पुरख की उस्तत है जाप साहब। जपजी साहब घरों बाहर निकलना, जाप साहब कित्थे जा रहे हैं वो जाप साहब ने दसना है। असीं अकाल पुरख दे पुजारी हां ते असीं आनंदपुर दे वासी हां। असीं आनंदपुर साहब चले हां। हुण जदों तुसीं आनंदपुर साहब चलोगे, राह विच रुकावट भी आएगी, मड़ियां भी आउणगियां, मसाणा भी आउणगियां, देहधारी भी आउणगे, ज्योतिषी भी आउणगे। कोई पूरब नूं मूँह कराउण वाला, कोई पश्चिम नूं मूँह कराउण वाला भी आएगा। कोई तुहानूं दरियावां दे कंढे ते दान पुण्य कराउण वाला भी आएगा। कोई तुहाडे ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ नग पाउण वाला भी आएगा। ते महाराज कहते फिर तू बड़ी सवैये। सवैये का मतलब है मेरे राह जिहड़ी रुकावट आएगी तैनूं पता होवे कि मैं मड़ियां ते नहीं जाना, मैं मसाणा ते नहीं जाना, मैं धागे तवीतां वल नहीं जाना। फिर सवैये तैनूं समझाउणगे। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गले लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में कहूँ पछां को शीस नवायो। मारे कहते जिन्ने भलेखे पाने वाले होणगे ना, सच पता की है श्री भगवान को भेद ना पाए, रुक ना जाएंगे। इन्होंने किसी ने रब का भेद नहीं पाया। ये एवं अडंबर रच के बैठे आ। तू धागे कविता वल ना तुर जी, तू इन्हां पखंडियां दे वल ना तुर जाई। श्री भगवान को भेद ना पाया, नहीं पाया इन्होंने भेद। फिर तू उत्थे बेनती करी। जे तेनू जोर जबरदस्ती करना कि हाँ बड़ियां ते जाना है, ये धागे तवीत तेनू पाउणे पैणे आ, फिर तू अरदास करी। अमरी करो हाथ ते रक्षा,
पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन अपना जान। फिर तू बेनती करी खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। फिर वो तेन दुष्टां तो दोखियां तो बचा लेगा ते जदों होर अगे तुरेगा ते फिर आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं। फिर तू आनंदपुर पहुंच जाएगा। बैठे इत्थे जपजी साहब तो शुरू होए ते जदों आनंद साहब की बाणी तक आए ते साडी सुरत कित्थे पहुंच जानी है? आनंदपुर साहब। असी तन करके जिथे मर्जी बैठे होइए पर साडी हाजरी रोज आनंदपुर साहब लगेगी। पर वो कदों लगेगी? जदों तुसी बाणी ते बाणी दे रंग विच रखोगे। गुरु रामदास जी का ये शब्द है ते अखीरली पंक्ति विच की क्या मारे ने? गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए गिरी अखीरली पंक्ति विच की गया? महाराज कहते जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै। मैं ओदे चरणां दी धूड़ी मंगदा जिहड़ा आप भी जुड़ गया ते होरां नूं भी जोड़दा है। जिहड़ा आप भी बाणी ते बाणी दे रंग विच रंगिया गया। संगत जिद्दां दी करोगे उदां दी रंगत आउणी है। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास धूड़ तिना की जेब लै जी कहो नानक। रोज रात नूं सौण लगिया हर एक गुरु के सिख ने भावें वो पुरुष है भावें स्त्री है बच्चा है बच्ची है हर एक ने सौण लगिया सोहला साहब का पाठ करके सोना। ये जरूरी है। जदों तुसी घर सौण लगो ते रात नूं सोहले की बाणी का जिन्हों कीर्तन सोहला भी कहने आपां इहदा पाठ जरूरी है। जदों तुसी रात नूं सौण लगिया बेनती करोगे अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास ये है सुख मांगे मोको कर संतन की दूरे। जदों सवेरे अख खुलेगी तुसी गुरमुखां दी संगत में बैठे हो उदों तुसी रंग रतड़ियां रूहां दे विच बैठ के बंदगी कर रहे होवोगे। जे तुसी रात ये बेनती करके सुते हो। इसलिए महाराज जी ने कहा कि जे तू बाणी को कमाएगा ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੇਗਾ यही बाणी तेरे लिए अमृत बनेगी। फिर तू ये बाणा की है दोवें गल्लां दास आप जी नाल कर रहा है बाणी दी भी ते बाणी दी क्योंकि दोवें जरूरी ने। एक बच्ची का विआह होया उन्होंने सोहना वर मिल गया उन्होंने पति मिल गया सोहना वर मिल गया। उन्होंने पूछो कि तू हाथ च चूड़ा क्यों पाया? उन्होंने पूछो कि तू धीए तू बच्चीए ये श्रृंगार क्यों किया हुआ है? वो की कहेगी ये मेरे सुहाग दी निशानी है। यही कहेगी ना ये मेरे सुहाग दी। आप पांच ककार की नहीं ये भी तो सुहाग दी निशानी है। ये भी तो सुहाग साडा सुहाग कौन है? साडा सुहाग को गुरु कलगीधर पातशाह है। ये निशानी है साडे प्रेम दी पांच ककार। जे आप सुहाग की निशानी भी नहीं पाई इसका मतलब अंदर हजे बाणी का जाग नहीं लगा। हजे बाणी का जाग नहीं लगा। जिन्हों जाग लगा उसे अगे झोली अगे करके कहता है कि मैनू अमृत की दात दिओ मैं भी ये श्रृंगार करके मैं भी सुहागण बनना चाहती हूँ। एक पल देखो गुरबाणी जिहड़े तुसीं पढ़ते हो ना तीन गुरबाणी के विच रूप आए ने। एक कुचजी पहला सब तो पहला कुचजी का शब्द आएगा फिर दूसरा शब्द सुचजी का आएगा फिर तीसरा शब्द आएगा गुणवंती। ये तीनों इकट्ठे ही ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। पहला कुचजी को जज सिखाया कि तेरे अंदर जीवन का जज होना चाहिए। हुण उस जीव आत्मा जिहड़ी है ना स्त्री है इसका भी पति परमेश्वर है। हुण मन दूजे पासे लगन करके ये दुहागण हो गई। ये कर्मां की मारी अंदरों रोंदी है। शरीर की पीड़ा ते सानू महसूस होती है पर सानू कदे आत्मा की दर्द कोई पुकार सुनी नहीं। कदे अंदरों आत्मा भी रोंदी है साडी
पता की कहती है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो, अंदर आत्मा कहती कर्महीन, मैं कर्मां दी मारी हाँ। मन नूं भेजिया सी बंदगी करन, मन बुराए पै गया, मन माया ने उलझा दिता, मन जहर लैन पै गया, मन नूं अमृत पीण भेजिया सी, ये जहर ये माया की बेक जिहड़ा सी उहदा रस मानण लग पिया, मन जहरीला हो गया। हुण कर्मां दी मारी रोंदी है, की कहती है कर्महीन धन करै बिनंदी, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां। सुहागण का मतलब आ गुरमुख, सुहागण का मतलब जिहड़ा बाणी ते बाणी दे रंग विच रखिया गया। जिस दिन इत्थे खंडे बाटे दी जिहड़ी वो पौल तैयार होनी है ना, अमृत संचार इत्थे जिहड़ा 9 तरीक नूं होना है, उस दिन जिन्ने अमृत अबलाकी अमृत लैके बाहर आउणगे वो सारे सुहागण ही नहीं होणगे, वो सारियां सुहागण ही होणगियां उस दिन जिहड़ियां उदों बाहर आउणगियां अमृत की दात लैके। सब सुहागण माणे रलियां, एक देवो रात पराई, हे दाता जी मेरी झोली विच भी आ दात पाओ, मैं भी सुहागण बन के कि मैं बाणी ते बाणी दोवां दा शिंगार करना चाहुंदी हां, क्योंकि मालिक दे घर विच गुणवंती नूं थां मिलनी है, सुचज्जी नूं थां मिलनी है, कुचज्जी नूं नहीं है मिलनी। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं भाई डल्ले ने कहा महाराज मैनूं अपने घर सचखंड पीढ़ी जिन्नी थां दे दोगे, महाराज कहते सारा सचखंड ही तैनूं दे देंगे, बस एक काम कर खंडे दी पौध ले लै, अमृत की दात ले लै, गुरु का सिंह सज जा, ते फिर तैनूं पूरे का पूरा सचखंड ही दे देंगे, तू पीढ़ी जिन्नी थां मंगदा। ये गल्लां एवें नहीं सी, ये गल्लां समझण ते समझाउण वास्ते सन। इसलिए गुरु रामदास महाराज ने कहा इस बाणी में अमृत है। फिर गुरु अर्जन देव जी ने बाणी का प्रकाश कर दिया, उस बाणी की कमाई चली फिर गुरु तेग बहादुर साहब तक। फिर जिधर गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का समा वक्त आया, साहब कहते हुण समा आ गया है कि जिहड़ा अंदर रंग लाया सी बाणी का, उन्होंने हुण बाहरों चोला बाहरों पहरावा पाउण का समा आ गया, उन्होंने शिंगार देने का समा आ गया है। इसलिए उस दिन 80,000 के करीब इकट्ठ होया सी ते महाराज ने 5 ककारां विचों कड़े भी होणगे, गातरे भी होणगे, किरपान भी होएगी, श्री साहब कशहरे भी होणगे, ते महाराज ने इक्को दिन थोड़ी तैयार कर रहे, इसका मतलब तैयारी पहले ही की हुई है, पहले ही तैयारी सतगुरु ने सारी करवाई हुई है। उस दिन 20,000 प्राणियों ने अमृत छकिया सी, 20,000 ते 20,000 श्री साहब, 20,000 गातरे, 20,000 कंगे, 20,000 कड़े, ये एक दिन च तां नहीं तैयार होंगे। गुरु साहब ने पूरी तैयारी करके फिर बैसाखी वाले दिन आख्या भी आओ सतगुरु आगे शीस भेट दियो, जे वाकई गुरु वाले हो तो फिर शीस भेटा करो, तां फिर पता लगना कि ये गुरु वाला है। अज भी मारे कहते हैं पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, हो सबना की रेणुका दो आओ हमारे। इत्थे प्रेम की खेड़ है, ये प्रेम की खेड़ में ही रब नूं पाया जाना है। सच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो, ते नहीं पर पायो। ये मारे कहते जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। एक मार्ग पैर तरी जग सिर दीजे पान ना कीजे। जे तुसी केसां दी अहमियत जिहड़ी जाननी है ना भी केस साडे कितने वड्डे बोले आ। भाई तारू सिंह नूं पुछो, भाई तारू सिंह तैनूं ते मौका सी मिलिया कि तेरे केस ला दिंदे, तेरी खोपड़ी बच जानी सी, तैनूं आजाद नहीं कर देना सी। भाई तारू सिंह कहते नहीं, मैं केस नहीं लवा सकता, खोपड़ी लवा सकता, केस नहीं मैं लवा सकता, क्योंकि ये वो केस ने जिन्हां दा मैं मुल नहीं दे सकता। भाई मनी सिंह नूं कहा भी तेरा गुट लाउणा है, कड़ा पाया होया हाथ विच, तू कड़ा ही ला दे, तेरा गुट रहण दिंदे आ।
भाई मनीष सिंह कहते कड़ा नहीं लेना, गुट भावें तू ला दे, क्योंकि इस कड़े का मुल नहीं कोई दे सकता। ये उन्ना चिर है जिन्ना चिर दुकान ते पिया, जदों ये सज जाण ते इहदा मुल नहीं दिता जा सकता। फिर बंद कटाया जा सकता है, पर इहदा मुल नहीं उतारिया जा सकता। इसलिए सिक्खी नूं समझो, अपने परिवार में बच्चियों भी रंग लाओ, जरूरी है। जो तुसी बिल्डिंग बनाते हो तो की ध्यान रखते हो? सब तो पहला नीहां, भी नीहां मजबूत होण ते कंधां भी मजबूत होणगियां ते छत भी मजबूत होएगी। ते जे नीहां ही कमजोर होईयां ते फिर कंधां ते आपे ही हिलणियां ने। नीहां दा मतलब है साडे बच्चे छोटे, जवानी है कंधां ते बुढ़ेपा है छत। ये अपनी जिंदगी सवारनी है तो छोटे छोटे बच्चों विच आ गुण भरो, सिक्खी दे गुण जिन्हां विच भरो, ताकि जदों ये जोबन विच आउण ते बाणी दे रंग विच रंगे जाण। ये समागम कीते तुहाडे सफल हो जाण, कि गुरु वाले बणीए, गुरु चरनां च जुड़ीए, बाणी दे धारनी बणीए। क्योंकि इहदे तो बिना साडा गुजारा नहीं होना, इहदे तो बिना मालिक दे घर परवान नहीं होया जाना। कहते खोटे मालिक के घरों बाहर किए जाते हैं तो खरे मालिक के खजाने में पाए जाते हैं। खरे खजाने पाइए, खोटे सटिए बाहर बाहर। विचारा बहुत ने, पर चलो समा जड़ा वो समापक है। ये दीवान अगे भी इसी तरह सजने हैं, और विद्वान सज्जन पहुँच के अपनी बाणी के रंग में रखणगे। फिर बेनती करा भी ये समागम किते सफल हो जाए। जे आप एक भी गुरु साहब की सिक्ख्या अपनी झोली में, दिल की झोली च पवा के ले जाइए। अरदास करो, गुरु साहब साडा मन नहीं मनता, मन राजी नहीं होता, पर तुसीं तुरटो साडे मन नूं गुरमुखां दे चरनां की धूड़ी मिल जाए ते किते इहदी नाम बाणी के रंग विच रंगिया जाए। आ सुख आ दात गुरु साहब जी कोलों मंग के आपां जाइए। अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की दूरे। जाकर भगती का जाग अंदर लगे, वो दात साडी झोली विच पाओ। फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तव शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। सारे रल के पढ़ियो ते मगर नहीं पढ़ना, अपने दिल की गहराई चों अपने नहीं पढ़ना। अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी फिरत फिरत प्रभ आया, फिरत फिरत प्रभ आया। परिया तव शरनाए, परिया तव शरनाए, परिया
अपनी भगति लाए, अपनी भगति लाए, अपनी गुरु पातशाह कृपा कर सतगुरु जी रहमत वरदान आप सारियां सिख संगतां चढ़दी कला वाला जीवन बख्शण, बाणे ते बाणी नाल जुड़न। जिन्हां दा मन राजी होया वो जरूर अमृत की दात लैण लई अपने नाम लिखाओ। जिन्हां दा मन अजे भी नहीं मनिया वो अरदास करो, गुरु पातशाह जिस दिन कंडे बाटेगा कि अमृत तैयार होवे, साडा मन राजी होवे, असी भी ये सुहागण वाली निशानी पा के सतगुरु दीआं खुशियां लोक सुखीए, परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले बना सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद सिख संगतां दा, इत्थों दे प्रबंधक वीरां दा जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन करवाए ने। गुरु साहिब जी का धन्यवाद जो बोलण दी समर्था सतगुरु पातशाह जी बख्शते हैं। आउण वाले समागमां च भी इस